Namaskar, I Dharmen Tiwari welcome you to this YouTube series of Swastika Academy. Today we are going to discuss about the basic structure of Constitution. Whenever we talk about our Constitution and its amendment, one question arises about how much authority does the Parliament have over the amendments regarding the Constitution. तो शुरू से लेके आज तक today we have got around 104 constitutional amendment. This question has continuously boggled the mind of constitutional experts and Supreme Court judges, as we see that there is no single opinion about what is the extent to which the government or the parliament can amend our constitution. Even this concept of basic structure came with a 7-6 majority in the constitutional bench of Supreme Court. तो हम देखते हैं ये फंडा क्या है. The basic structure of constitution, as we know, the first constitutional amendment which was brought in 1951 by then Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, which curbed the fundamental rights, the right of expression to some extent, और उसमें कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज थे. रिमेंबर, प्रॉपर्टी वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट टिल इट वाज मेड अ लीगल राइट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. सो द पावर ऑफ अ पार्लियामेंट टू अमेंड की प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज बीन अ कंसेंसस that the government or the parliament has got complete authority regarding amendment of the constitution, as it was seen in Sankari Prasad case and Sajjan Singh's case. In the both cases, the court has ruled that the term law, जो कि article 13 में mentioned है, article 13 mentions that anything that curbs the fundamental right, any law that restricts the fundamental right can be declared void by the Supreme Court of India. Now, the law in Article 13 must be taken into means rule or regulations made in exercise of ordinary legislative power and not amendments to the Constitution. This means that the Parliament had the power to amend any part of the Constitution, including the fundamental rights. So, to sum it up, पहले ये कंसेंसस था सुप्रीम कोर्ट में कि द गवर्नमेंट हैज ऑल द अथॉरिटी. गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ? द पार्लियामेंट हैज गॉट ऑल द अथॉरिटी रिगार्डिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स. और तभी जो हम फंडामेंटल राइट्स में हम विद जिसको हम कहते हैं अप टू सम एक्सटेंट या कुछ लिमिटेशंस हमने फंडामेंटल राइट्स के एब्सोल्यूट होने में लगाई, खासतौर पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के एब्सोल्यूट होने में लगाई, वो इसी कंसेंसस के जरिए लगाई कि द पार्लियामेंट हैज गॉट ऑल द अथॉरिटी, एब्सोल्यूट अथॉरिटी रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. बट बाद में यह चीज बदली. एज आर्टिकल 13(2) रीड्स, the state shall not make any law which takes away or abridges the right conferred by this part, means part 3rd of the constitution, and any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention be void. जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा का पूरा लॉ वाइड नहीं होता है, सिर्फ उतना पार्ट जो कि फंडामेंटल राइट को कंट्राइव करे वो वाइड डिक्लेयर हो जाता है. However, in Golaknath case in 1967, the Supreme Court held that Parliament could not amend the fundamental rights. अब सज्जन कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनी एक्सटेंट, और गोलकनाथ केस में कह रहा है कि अब पार्लियामेंट जो है वो उसके पास राइट नहीं है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का. ऐसा ही केस आप उसमें भी देखेंगे जब हम बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल, whether the preamble is part of constitution or not. ऐसे ही फंडामेंटल राइट्स में या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आई कि पार्लियामेंट के पास कितनी पावर्स हैं फंडामेंटल राइट्स या किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए. कोर्ट हेल्ड दैट an amendment under article 368 is law within the meaning of article 13. So any amendment made by procedure which is mentioned इन आर्टिकल 368, जिसमें संवैधानिक संशोधन का जो इशू है वो दिया गया है,
जैसा कि आप सब जानते हैं, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो जिसमें हम प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को समझते हैं. सो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज डन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 इज अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13. ये गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा. To get over the judgment of Supreme Court in Golaknath case, R.C. Cooper case and Madhavrao Sindhia case, the then government headed by Prime Minister Indira Gandhi had enacted major amendments to the Constitution. अब जैसा कि आपने बहुत सारे केसेस में देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट अगर किसी पर्टिकुलर मामले में कोई हियरिंग देता है तो उसके बाद हमारी सरकारें क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती हैं. क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है, राइट टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही अगर कोई चेंज कर दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको उस अकॉर्डिंग प्रिवेंट करेगा. तो ऐसे ही अमेंडमेंट 24th, 25th, 26th, 29th जिनमें एबोल्यूशन ऑफ प्रीवी पर्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज को 9th शेड्यूल में डाल देना. अब 9th शेड्यूल आया ही इसलिए था, उसको इंक्लूड ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए किया गया था कि जिससे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो रिट्स दायर होती थी प्रॉपर्टी या कहिए लैंड रिफॉर्म्स को मैनेज करने के लिए, तो उन सब से बचा जा सके. तो इन सब केसेस में जो गोलकनाथ केस, आरसी कूपर केस और माधवराव सिंधिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट रूलिंग दी थी, उससे बचने के लिए ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने लेकर आए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. ऑल द 4 अमेंडमेंट्स ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट वर चैलेंज्ड इन केशवानंद भारती केस. नाउ दिस इज वेरी फेमस केस, केशवानंद भारती केस. केशवानंद भारती, यू कैन सी केशवानंद भारती हियर. केशवानंद भारती जिनका अभी हाल ही में डिमाइस हुआ है, ठीक है. वो एक मठ है केशवानंद भारती मठ, जो कि केरला में बिलोंग करता है, केरला में है. सो in Keshwanand Bharti case, a relief was sought against the Kerala government vis-a-vis 2 state land reform laws which impose restriction on management of religious property. अब हम जानते हैं कि हमारे आर्टिकल में हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपने रिलीजन को अपने हिसाब से विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कंडक्ट करने की इजाजत है, परमिशन है. The case was challenged under Article 26 concerning the right to manage religiously owned property without government interference. लेकिन जो प्रॉपर्टी लॉ केरला गवर्नमेंट लेके आई थी वो इस फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही थी. क्वेश्चनिंग अंडरलाइनिंग द केस वाज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अनलिमिटेड. जब केशवानंद भारती केस में आया तो उसमें एक सवाल आया कि क्या संविधान के संशोधन करने की शक्ति संसद के पास अपरिमित है, किसी भी लेवल तक है. इन अदर वर्ड्स, कुड पार्लियामेंट अल्टर, अमेंड, एब्रोगेट एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इवन टू द एक्सटेंट ऑफ टेकिंग अवे ऑल द फंडामेंटल राइट्स. तो मान लीजिए सरकार कल को एक पॉलिसी बनाती है जिसमें वो लोगों के सारे फंडामेंटल राइट्स उसको छीनने पड़े, तो क्या उस समय की जो संसद है वो इस तरह से कर सकती है? ये एक सवाल उठकर केशवानंद भारती केस में आया. द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन केशवानंद भारती केस रूल्ड बाय 7-6 वर्डिक्ट. अब आप देखिए 13 लोगों की बेंच बैठी. इन 13 लोगों की बेंच में भी जो डिसीजन है वो 7-6 से आया. इसमें भी जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत कोशिश कर ली थी कि किसी तरीके से इस तरीके का वर्डिक्ट ना आए. जो आया, Parliament could not amend any part of Constitution so as long it did not alter or amend the basic structure or essential feature of the Constitution. तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया. एग्जामिनेशंस में बहुत बार ये सवाल आता है कि कौन से केस से संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो पुट इन किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए. अब कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो की, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात तो की, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है क्या इसको डिफाइन नहीं किया. उसको किस पे छोड़ दिया? इंटरप्रिटेशन पे छोड़ दिया. ऐसे बहुत सारे अनआंसर्ड जो चीजें हैं वो हमारे संविधान में रह जाती हैं या हमारे अलग अलग वर्डिक्ट्स में रह जाती हैं, जो कि धीरे धीरे अलग अलग लेवल पे अलग अलग इन्फेरेंस के जरिए अलग अलग तरीके से उसको प्रेजेंट किया जाता है. Court did not define the term basic structure and only listed few principles. Federalism, जिसको हम संघवाद कहते हैं हिंदी में, सेकुलरिज्म यानी पंथ निरपेक्षता, एंड डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र as being its part. अब देखें कि क्या क्या हम समझ सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर में हिस्सा किस किस चीज का है, कौन कौन सी चीजें मिलके बेसिक स्ट्रक्चर बनाती हैं.
दे इंक्लूड द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है किसी भी और लॉ, किसी भी और ऑर्डिनेंस, किसी भी और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, ठीक है। सेकंड, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज है, किसी व्यक्ति, किसी विचारधारा, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट, उसका राज नहीं है, जो लॉ है वो सुप्रीम है, ना कि कोई पर्सन। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब लॉ सुप्रीम है तो लॉ की रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो बेसिक स्ट्रक्चर में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज ऑल्सो इंक्लूडेड। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जो 3 पिलर्स हैं किसी डेमोक्रेसी के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, इनकी जो पावर्स है वो सेपरेट हो। अभी हम जैसे अलग अलग केसेस में देखते हैं कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो एब्सोल्युटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, एक दूसरे का पार्ट ही है। और ऐसे ही हम जुडिशरी को देख रहे हैं कि जुडिशरी लगातार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के अलग अलग कामों में एंट्री कर रही है, जिसको हम आजकल जुडिशियल एक्टिविज्म या जुडिशियल एडवेंचरिज्म के नाम से जान रहे हैं। सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये जिस फंडामेंटल आधार पे हम बने थे कि इंडिया दैट इज भारत इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसमें सेकुलर और सोशलिस्ट टर्म तो बाद में आए थे। सो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, देन द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, कि संसद जो है, मतलब हमारे देश की जो सरकार है वो संसदीय, मींस लोगों का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के जरिए रूल करना वो रहेगा। द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब देखिए अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, इलेक्शन पे डिपेंड करता है। सो इंडिपेंडेंट फेयर इलेक्शंस होने बहुत जरूरी हैं। एंड लास्ट इज वेलफेयर स्टेट, और इसके एटसेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन बेसिक स्ट्रक्चर के दायरे में आते हैं। एसआर बोम्मई केस, जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर थे, उनके केस में भी बेसिक स्ट्रक्चर का जो एप्लीकेशन है वो किया गया था 1994 में। सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द डिसमिसल ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट बाय द प्रेसिडेंट फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद, इन्वोकिंग अ थ्रेट टू सेकुलरिज्म बाय दीज गवर्नमेंट्स। बहुत सारी जो गवर्नमेंट्स हैं उस समय सस्पेंड की गई थी, और जिसमें से कर्नाटका की गवर्नमेंट भी थी। बाद में इस पर बहुत लंबा केस चला। खैर, वो जब जब प्रेसिडेंट रूल की बात आती है तब तब एसआर बोम्मई केस जो है उसकी चर्चा चलती है, खासतौर पे पावर गिवन टू अ गवर्नर ऑफ अ स्टेट। वो किसी और चर्चा के लिए हम रखेंगे। सो व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर? द क्रिटिक्स ऑफ डॉक्ट्रिन हैव कॉल्ड इट अनडेमोक्रेटिक सिंस अनइलेक्टेड जजेस कैन स्ट्राइक डाउन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। समझिए, द जजेस विच आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और इंडिया में तो आयरनी ये है कि अ कोलाज ऑफ जजेस, सिटिंग जजेस, वो डिसाइड करते हैं कि उनको सक्सीड कौन करेगा। ठीक है, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है जजेस का, उसी जो जजेस का जो कॉलेज है वो डिसाइड करता है कि अगला जज कौन होगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया संशोधन अनइलेक्टेड जो न्यायाधीश हैं वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम its proponent have hailed the concept as the safety valve against majoritarianism and authoritarianism। जो इसके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि इसके जरिए हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अधिनायकवाद या बहुसंख्यकवाद, कि कोई पार्टी अगर मान लीजिए मेजॉरिटी में है बोथ इन लोकसभा एंड राज्यसभा, तो वो किसी भी तरीके का चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में ला सकती है क्या? या कोई पर्सन, जैसे उस समय हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी और आज मोदी जी हैं, अगर वो इतने ज्यादा शक्तिशाली हों तो क्या उनकी जो विम्स एंड फैंसीज हैं, क्या उनकी जो इच्छाएं हैं वो देश पे थोपी जा सकती हैं? तो जहां एक तरफ इसके समर्थन में चीजें हैं, वहीं इसके विरोध में चीज है। अब मजे की बात यह है कि इंडिया में सबसे पहले इसका जो ओरिजिन हुआ वो सज्जन सिंह के केस में हुआ, जिसको जस्टिस मुधोलकर थे, उन्होंने किस चीज का रेफरेंस लिया? पाकिस्तान के एक 1963 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन था जिसपे पाकिस्तान में बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी। द चीफ जस्टिस कॉर्नेलियस ऑफ पाकिस्तान had held that the president of Pakistan could not alter the fundamental features of their constitution. So imagine, we the biggest republic of the world, the biggest constitution of the world,
जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं उसका रेफरेंस हमने लिया अ केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, सो दैट्स ऑल, दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है, लेकिन बहुत से केसेस में सुप्रीम कोर्ट के यूज किया जाता है। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्वास्तिका एकेडमी, धर्मेंद्र तिवारी। थैंक यू।